मैं लोगों को और मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा ये कैविएट देता हूँ कि भाई the little bit of thing is that election should have happened when Surya was in Mesha. They should have been a swift election, maximum 3 phases. तो अभी जब मैंने बिहार का सुना कि it is going to happen in 2 phases, it in a way made me happy because it is good. Also, BJP should be playing to its strength. बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है? उसके कार्यकर्ता। आप right. किसी और को क्यों इतना चांस दे रहे हो कि भाई दे कैन मोबिलाइज देयर कार्यकर्ता टू 7 डिफरेंट फेजेस, right? You have a Makes lot sense. of it, make use of it. So Hmm. the advantage is BJP. The other thing, important thing is the PK effect, right? What everybody has been talking, Yeah. somebody is saying that हाँ effect है, somebody has been saying Karthik ji it is बड़े दर्शन but कुछ बेसिकली होगा नहीं. When it comes to the voting days, वो PK effect चला जाएगा. It will be a 2-party contest, so on and so forth. Yet मेरा एक सेंस है कि PK effect definitely होगा. Okay, अच्छा. and that will basically cut down maybe BJP's lead a little, because what I feel is he will appeal to a rational audience, right? Or rational audience, little bit of an upper caste vote are basically BJP supporters. Those are the people who basically think rationally. They just don't think कि भाई कुछ भी हो मोदी जी को हराना. वो एक सेट है, वो MY कॉम्बिनेशन वो तो है तेजस्वी के पास. लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज मैं करण आपको बोलना चाहूंगा. जब मेरे ख्याल से 2022 में नीतीश जी का लास्ट टाइम वो पलटी मारे थे और स्वेरिंग इन हुआ था. तो उस वक्त उनका स्वेरिंग इन चार्ट था. उसके बेसिस पे मैंने प्रेडिक्शन किया था कि दिस इज द लास्ट स्वेरिंग इन दैट ही इज हैविंग. Oh, उस वक्त interesting. मैंने बोला था. एंड व्हेन अ गाय लाइक पीके गिव अ गारंटी कि भैया वो 25 के नीचे होंगे और नीतीश का जो इलेक्शन है वो लास्ट है. एंड अगर एंड हिम व्हेन ही सेज दैट अगर ये नहीं हुआ तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा. देखो, हमेशा मैं दिमाग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. सो ऑल सेड एंड डन, पीके एज अ प्रोफेशनल इज समथिंग आई हाईली रिस्पेक्ट. कि भाई जो भी Right. है बंदे में Right. दिमाग है. Whatever he says, there is a method to madness. And when he puts in some stake, कि बॉस जैसे उसने इवन बंगाल के इलेक्शन में बोला ममता के था टाइम पे कहा था 100 नहीं पार करेगी बीजेपी. 100 पार करेगा तो मैं छोड़ दूंगा. उसके बाद ही लेफ्ट इट, बट ही लेफ्ट इट ऑन अ हाई. दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि भाई अभी मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के जैसे काम नहीं करूंगा किसी पार्टी के साथ. सो उस वक्त भी हम जैसे लोगों को लगता था यार ये बड़े बोल है यार, 100 के ऊपर तो जाएगी बीजेपी इजीली. एंड probably lot of people were thinking probably BJP would beat the government, right? So, but other ways, but I also feel Have you and seen there's PK's no, chart? Have you seen PK's chart? yes, आपने yes, उनकी yes, देखी? What is the yes, big thing that comes out? Does he come across that intelligent? मतलब उनका mercury brilliant, high है, कैसे है? How do you see that? absolutely brilliant, absolutely brilliant. I would say, see that there are two people जिसके दिमाग की मैं बहुत वैल्यू करता हूँ in the contemporary period. One is Amit Shah. Amit Shah is Virgo Lagna with Rahu in Lagna. And if you understand Maharishi Parashara, Brihat Parashara Hora Shastra, he says any planet in Lagna is praiseworthy. तो राहु भी लग्न में होता है, तो दैट मीन्स दैट राहु इज अ ब्रिलियंट राहु. और राहु को जब हम नीति की बात करते हैं ना, साम दाम दंड भेद, राहु रूल्स भेद नीति. So what Amit Shah is brilliant and what a lot of people don't understand, काफी लोग को लगता है यार he is a deal maker, यार वो backdoor में अच्छा deals बनाते हैं. But the real quality of Amit Bhai Shah is his भेद नीति. He can really create a rift और वो लेफ्ट का इंडिकेटर लगा के राइट में टर्न ले लेंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा. Similarly, what PK has got is a wonderful Rahu. That guy is also a brilliant strategist when it comes to creating confusion. So both these politicians actually thrive on confusion. और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भैया आप जो ज्योतिष सीखते हो ना, उस ज्योतिष को एक पर्सपेक्टिव में सीखो कि भैया आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसको कलयुग कहते हैं. तो कलयुग में आप अगर नैसर्गिक कारका को समझोगे तो डोंट टेक सूर्य इज द कारका फॉर पॉलिटिक्स. आज के टाइम में आप राहु को ले लो कारका ऑफ पॉलिटिक्स. Okay, बिकॉज द nice. पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग इन टुडेज टाइम, फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई भी कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले कि मैं देश के लिए करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई सब अपना और दल का पहले सोचते हैं, देश का तो लास्ट में सोचते हैं. राइट? तो इट इज प्योर राहु.